مرتضی میاں اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جی الحمدللہ ایک اور بہت بڑا فتنہ جو کہ مرزا غلام قادیانی کے بعد اٹھا تو اس کو بھی اللہ پاک نے اپنے انجام تک پہنچا دی ہے۔ میری مراد انجینئر مرزا محمد علی جیلمی ہے کہ جس نے مرزا غلام قادیانی کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے پاکستان کے اندر اپنی تبلیغ کو شروع کیا۔ مرزا غلام قادیانی کے وہ عقائد اور نظریات جو قادیانی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے تھے، اس نے ایک اکیڈمی بنائی جیلم کے اندر، اور وہاں پہ بیٹھ کے قادیانی تبلیغ کو نشر کرنا شروع کیا، اور جو گستاخیاں اور جو توہین مرزا غلام قادیانی نے کی ہوئی تھی وہی توہین اور گستاخیاں مرزا جونیئر جیلمی نے کرنی شروع کی، اور یہ سلسلہ جناب بابے بزرگوں سے شروع ہوا، پھر یہ جناب تابعین تک پہنچا، تبا تابعین تک پہنچا، پھر جناب اس نے محدثین تک یہ سلسلہ پہنچایا، ان کی توہینیں شروع کر دیں، پھر جناب جو ائمہ فقہ ہیں، فقہ اربعہ کے ائمہ کرام، ان کی توہینیں شروع کر دیں۔ اس کے بعد جناب اس پر بھی اس نے بس نہ کیا، یہ صحابہ کرام کی توہینیں اس نے شروع کر دیں، اور صحابہ کرام کی توہین کی ابتدا اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے شروع کی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے شروع کی، اس کے بعد یہ آگے بڑھتا ہے اور جناب خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ان کی توہینوں پر یہ آ گیا۔ اس پر بھی اس نے بس نہ کیا تو اہل بیت اطہار کی طرف آ گیا، حضرت امام حسن کی اس نے توہین کی، پھر جناب اس نے مولا علی پاک کی بڑی سخت توہین کی۔ اب جب سارے صحابہ اس نے اپنی گستاخیوں کی لپٹ کے اندر لے لیے، اس کے بعد بھی اس نے بس نہ کی، اس نے پھر یہ آگے بڑھا اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر ڈالی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے ساتھ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امی حضرت مریم علیہ السلام کی بھی توہین کی، اور دیگر انبیاء کی بھی توہینیں اس نے کی۔ اس پر اس نے بس نہ کیا، اس نے اللہ پاک کی بھی توہین کر دی۔ جب یہ جناب مرزا غلام قادیانی کی تعلیم کو اور اس کی تبلیغ کو یہ نشر کر رہا تھا تو آپ اگر دیکھیں تو مرزا غلام قادیانی کا طرز تبلیغ بھی کچھ ایسا ہی تھا، وہ بھی اسی طریقے سے تدریجاً اوپر بڑھتا 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 خدا کی توہین تک جاتا ہے۔ تو مرزا جونیئر جیلمی کی ٹوٹل عقائد اور نظریات، اس کا طریقہ واردات، اس کا اسلام کے اوپر جو حملے ہیں وہ مرزا غلام قادیانی کی طرز کے اوپر ہیں۔ اس کو علماء اسلام نے روکا، مختلف مکاتب فکر کے علماء نے روکا، سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، تمام علماء نے، اسکالرز نے روکا، سمجھایا، لیکن یہ نہ سمجھا۔ بہت سی ویڈیوز بنی اس کے رد کے اوپر، اس کے اوپر مقدمات ایسا ایسا تدریجاً بڑے جناب ہوئے، یہ 2-3 دفعہ پکڑا بھی گیا، لیکن جو بیرونی طاقتیں تھیں جس نے اس کو کھڑا کیا تھا، یعنی قادیانی طاقتیں، مرزا مسرور، تو یہ کسی طریقے سے مرزا مسرور اس کو بچا کے لے جاتا، اور جب بھی یہ پکڑا جاتا یا اس کے اوپر FIR ہوتی تو اس وقت قادیانی کمیونٹی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر
इतना शोर मचाती थी, इतना शोर मचाती थी। और ये जो लिबरल्स हैं और एथियस्ट हैं, मुल्हिदीन हैं और हिंदूज जो हैं, इंडिया के जो हिंदूज हैं, तो ये चूँकि ये सारी कम्यूनिटी इस्लाम की मुखालफ है, पाकिस्तान की मुखालफ है, तो ये लोग इसकी सपोर्ट के अंदर खड़े हो जाया करते थे। अभी 2-3 दिन पहले मिर्ज़ा जूनियर जेल में जनाब इसके ऊपर तौहीने रिसालत का मुकदमा 295C की FIR कटी और इसको हिरासत में लिया गया और अभी वो जेल में है। और जब से मिर्ज़ा जूनियर जेल में पकड़ा गया है उस वक़्त से लेके अभी तक, अभी जब मैंने ये बराड़ शुरू कर रहा हूँ ना, आज डेट है 27 अगस्त 2025 और टाइम है 3:15 हुए हैं दोपहर के पाकिस्तान के अंदर। तो कादियानी बराडें लगी हुई हैं, एथियस्ट दैरियों की बराडें अभी लगी हुई हैं, मैं अभी देख के आया हूँ। और वो सारी बराडों के ऊपर चीखो पुकार कर रही हैं मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के बारे में, जबकि दूसरी तरफ जो सारे मुसलमान, चाहे वो सुन्नी हों, शिया हों, वाबी हों, देवबंदी हों, टोटली मुसलमान खुशियां मना रहे हैं, टोटली मुसलमान खुशियां मना रहे हैं। कादियानी चीखो पुकार कर रहे हैं, मुल्हिदीन चीखो पुकार कर रहे हैं, चूंकि ये इन लोगों का याल्लाकार था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जितनी भी चीखो पुकार कर लें, जो भी कर लें, 295C कट चुकी है, ना काबिले ज़मानत, ना काबिले ज़मानत। जितना मर्जी उड उड के भी तुझे पद मार लो ना, कख भी नहीं जे होना, कख भी नहीं होना। चीका मारो किन्नियां को मार दे, रोना पिटना करो हाँ जरा किन्ना को कर दे। ते मेरा पुत्र इत्थे ट्रंप भी आ गया ना, तो वह भी नहीं छुड़ा सकता। हाँ, यह गल याद रखियो मेरी, चीका मारो हाँ किन्नियां को मार दे। द डैमेज हैज बीन डन, इसको कहते हैं द डैमेज हैज बीन डन। मिर्ज़ा जूनियर की दुकान बंद, कादियानियों की दुकान बंद। असल में ये कादियानियों की दुकान बंद हुई है, मिर्ज़ा जूनियर तो कुछ भी नहीं था, ये तो कठपुतली था, टाउट था कादियानियों का। तो असल में डैमेज हैज बीन डन जो हुआ है या दुकान बंद हुई है, वो कादियानियों की हुई, कादियानियत की दुकान बंद हुई। ये डैमेज हैज बीन डन कादियानियों का हुआ है। कॉलर आ चुके हैं, मैं अभी कॉलर लेता हूं, एक कॉलर को लूंगा, उससे पहले हम बात करेंगे, उसके बाद अगले कॉलर को लेंगे। डबल टैब आप कर नहीं रहे तो फिर मैं तुहानू कॉल ते किन चुका। डबल टैब करो तो चुको भरा नूं, मैं तो हुण वेहना पिया, सिर्फ 7 के बंदे कत्ती बैठे हो है। ओए मुसलमानों, खुशी को नहीं जी हुई, और को नहीं जी खुशी हुई, चुको जरा बराड़ नूं, चुको है कादियानिया तक, मुल्हिदीन तक पहुंचाओ है बराड़, हर कादियानी वेखे। कादी ओए तू नस जाए कादियानिया, चल तेन मैं लित्र मार के ठोकन लगा, निकल जा तू, बंद रहा ये कादियानी है ना। असल च मुल्हिद है, जेड़ा बनिया कादियानी है, मुल्हिद है लेकिन बनिया कादियानी है। 313 वाला ना जा, मेरी बराड़ से नहीं आना, बंद रहा जे है, शातमियत करदा है। अच्छा जी, आ जाओ जी, वारी वारी आओ भाई। हबीब साहब आए ने, हबीब साहब आए ने, हबीब साहब पता नहीं आए ने की है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, हुजूर वाला शाम तुम सब बराड़ संभालो फिर हुण। हुकम हो गया। एक एक कॉलर नूं चुकना जे, ते जिन्ना चिकर ओहदे नाल गल होएगी ते फिर अगले नूं चुकना है। ते सिर्फ एक बारी कहना जी बोलो, नहीं बोलेगा ते उन्हें चुक के थल्ले मारना, ठीक है। सिर्फ एक बारी कहना, होर वाधू बंदे नहीं बिठाने, वाधू बंदे मेरी बराड़ ते नहीं बहने चाहिए। बेहतर हो गया। सिर्फ असी 3 बंदे होवांगे,
ਦੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਰ ਹੋਏਗਾ ਬਸ। जी जी ਬਕਾਇਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। चलो जी ਡਬਲ आओ ਟੈਪ ਕਰੋ जी ਭਾਈ, ਚੁੱਕੋ ਭਾਈ ਮੁੰਡਿਓ, ਚੁੱਕੋ ਬਰਾਨ। डॉक्टर अदनान साहब आ जाओ भाई, डॉक्टर अदनान साहब। हाँ, पार्टी शुरू हो गई है भाई जी। डॉक्टर अदनान साहब तशरीफ लाए हैं। जी डॉक्टर अदनान साहिब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई की हाल ने, ठीक ठाक हो, सब खैर खैरियत है? शुक्र है अल्लाह दा जी। फरमाओ जी। फरमाना भाई कोई नहीं है, मिर्जा इंजीनियर जेड़ा है, मैं भी उनका फॉलोवर तो नहीं ले, फॉलोवर हो तुसी? ठीक है उनके ना 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 फॉलोवर नहीं। पता की गल है, वो गल्लां अच्छियां भी करता है बुरियां भी करता है, ठीक है, जेड़ी इसे करके सुनीदा केड़ी चवल वजी है ते केड़ी नहीं वजी, ठीक है। ते लिहाजा वो ठीक है, उनके ऐप वालों दे नाल ने ते वो कादियानी सर, वो कादियानी दा एजेंट है। ये मैनूं ते अज पता लगा तुहाडे कोलों सुन के। डॉक्टर तुसी अपने नाल उंज निकनेम लिखिया कि सचमुच दे डॉक्टर हो? ना जी, डॉक्टर हुंदा ते मैं सरकार कोई होर टैप दा गल करदा, मैं अनपढ़ बंदा निकनेम। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜੀ। ਆਇਨਾਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ अच्छा ਠੀਕ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ठीक है, मैं सुनने वास्ते तैयार हाँ। ओके ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਹਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਲੂ ਸਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। किड्डा जाहल बंदा तू है, घटिया इंसान है, तेरे नाल मैं केड़ी गल कीती गलत है? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ। ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ? ਹਜੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਉਂਗਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ। मैं बस वो ऐनक फड़ लगा था, बस और कोई नहीं। ਲੱਗ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤੋ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਅਗਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਟੈਟ ਹੋ ਕੇ ਬਬੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ? ਮਾਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਐਨਕ ਫੜਨ ਲੱਗਾ मोहतरम था। राना रफीक साहब जी। मोहतरम राना रफीक साहब तशरीफ लाए हैं जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੋ? जी जी ਉਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹੀ ਉਹੀ ਹੋ ਨਾ? जी जी जी। ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਓ ਅੱਜ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਵੀ ਮਾਰੀ 2-4 ਵਾਰੀ, ਉਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਜ਼ਰਾ? ਨਹੀਂ ਗੇਮ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਟਾਊਟ ਸੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੇਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ? ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਠੀ ਪਾ ਗਏ ਹੋ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਰਾਣਾ ਰਫੀਕ आओ भाई आओ, कलर आओ भाई। आओ भाई आओ, चढ़ते आओ दा जल्दी। हाँ भाई जी जनाब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम जनाब। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है। शुक्र है जनाब। मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अहमदी मुसलमान क्या चीज़ है? अहमदी मुसलमान असल में कादियानी अपने आप को कहते हैं जी। हम अहमदी मुसलमान है, कादियानी, जिनको मुसलमान कादियानी कहते हैं, मरज़ई कहते हैं। इनका जो लीडर है ना वो है मिर्जा गुलाम कादियानी, जिसने नबूवत का दावा किया, महदियत का दावा किया, मसीहियत का दावा किया, खुदाई दावा किया, इब्नुल्लाह का दावा किया। उसने कहा कि मैं खुदा हूँ, खुदा का बेटा हूँ।
मैं मुहम्मद हूँ, मैं ईसा हूँ, मैं इमाम मेहदी हूँ। ये वो इमाम मिर्ज़ा कादियानी है कि जो कि परले दर्जे का जानी था, शराबी था और कमाश का आदमी था, और कोई लड़की जो उसको दबाने के लिए आती थी उसके साथ बदकारी किए बगैर उसको जाने नहीं देता था। तो कमाश का आदमी था जी। अब समझ आ गई ये कौन है, ये अहमदी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आपने जो समझ आई है कुछ कि नहीं है? आई है तस्वीर दिखाऊं उसकी तस्वीर? नहीं, तस्वीर रहने दे, कोई मसला नहीं। अच्छा तस्वीर नहीं, आप ओके, थैंक यू सो मच। तस्वीर देखे बगैर ही आप यार? क्या तस्वीर? किस चीज की तस्वीर? मिर्जा गुलाम कादियानी की। नहीं, कादियानी की देख लेते हैं, कहीं किसी ने जूतों का हार डलवाया होता है, किसी ने कुछ लगाया होता है उसमें मोर पे। क्या क्या किया होता है? मैं देख लेते हैं, अक्सर सोशल मीडिया चलाते होते हैं, कभी कभी आ ही जाती है सामने। और चलो मैं अभी दिखा देता हूँ। आप डिमांड भी नहीं कर रहे, मैं तो सोच रहा था आप डिमांड करेंगे। ये मिर्जा गुलाम कादियानी के बेटे बशीरे ने ये किताब लिखी है अपने बाप की सीरत और किरदार के ऊपर। किताब का नाम है सीरतुल महदी, ठीक है। ये वो ही किताब है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि मिर्जा कादियानी जब मरा था लटरीन में मरा था। ये वो ही किताब है। ये वो ही किताब है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि मिर्जा कादियानी जानी था, रंडीबाज था, लवातत करवाता था और गंदे गंदे काम करवाता था, शराबी था, फीमी था, भंगी था। ये वो ही किताब है। ये सारी चीजें हमें इस किताब से पता चली। इस किताब के शुरू में ही उसने अपने बाप की तस्वीर भी लगाई है। ये नजर आई है? जी, हाँ, ये नजर आ रहा अब समझ आई है? ये इस बंदे की बात हो रही। हाँ, देखती है मैं। अच्छा, और कोई हमारे लायक? ओके, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपने हमें फॉलो किया हुआ है? नहीं, मैं तो आज पहली दफा ही आपकी ब्रॉड तो फॉलो तो करें ना, आप फॉलो करें ताकि आप हमारी ब्राड पे बार बार आया करें और आपके इल्म में इजाफा होगा। आपको चूंकि पता नहीं है ये कौन है, तो आप किस मुल्क में होते हैं? मैं सऊदी अरब के अंदर होता हूँ। सऊदीया में तो कादियानी एक भी नहीं है, लेकिन साइडों पे ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये सोशल मीडिया पर ही ज्यादा गर्दिश करते हैं। सोशल मीडिया पे मिलेंगे कोई दो चार, वो भी दो चार ही, ज्यादा नहीं। जी। और प्लम्बरी किसको कहते हैं इधर? प्लम्बरी, ये जो बंदा था ना, ये इसका एक नुमाइंदा वो इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेहलम, यहाँ पाकिस्तान का इलाका है, तो वहां का रहने वाला। तो वो कादियानियों ने उसको बिठाया था एक एकेडमी खोल के कि यहाँ पे बैठ के हमारी तालीम तुम शेयर करो। तो यही सारी तालीमात है। ये वो तो इस टाइम गवर्नमेंट के कब्जे के अंदर है, मैंने सुना है। हाँ, वही आपको तो पता है सब कुछ, तो आप कह रहे थे मुझे नहीं पता। नहीं, उसका तो प्लम्बरी का तो पता है, अहमदी का नहीं था पता। अच्छा, नहीं पता था। ये दोनों एक ही है। छोटे बड़े भाई का फर्क है, छोटे बड़े भाई का। सही है, मैं तो जड़ उनकी पकड़ना चाह रहा था कि अहमदी स्टार्ट तो इनको प्लम्बरियों को हम मरज़ई कहते हैं और मिर्जा कादियानी के फॉलोअर्स को हम कादियानी कहते हैं। ओके। कादियानी और मरज़ई का फर्क भी पता चल गया ना? जी। हाँ। और सवाल? जी, थैंक यू सो मच। नहीं, मैं जाऊंगा, मेरा भी टाइम हो गया। वालेकुम सलाम। हबीब साहब अगले कॉलर नु लो जी। अगर शाह साहब आया जी, पहले एक कॉलर नु थल्ले ला लिया करो, फिर अगले नु लेना है। तरीका कर है पहले एक नु थल्ले ला लवो, फिर अगले नु लईदा कॉल। ए तरीका कर। शाह जी की हाल है भाई? मैनू लगता मेरे नेट का इशू है, मैनू लग रहा मेरे नेट दा एक मिनट मैं सही कर लेना। नहीं मेरे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सादे वालेकुम सलाम। कॉलर चुको हबीब साहब, अगले कॉलर नु। शाह जी ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਜੀ ਸਹੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਬੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। शान साहब तशरीफ से आए जनाब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। है? मुफ्ती साहब आज ना मैं पिछले जब से लास्ट दफा आपसे कॉल पे बात हुई है ना, 1 हफ्ता हो गया, जी जी मैंने इतनी सर्च की है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट बिंग ने आज मुझे धोखा दे दिया। क्या हो गया? ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ, इनकी साजिशें देखें आप। ये है माइक्रोसॉफ्ट बिंग। अच्छा, बिंग। जब आप इनको सर्च करेंगे ना कादियानियों को, इस पे कादियानियों की गुस्ताखियां इन उर्दू, हाँ तो ये सर आपको कहेगा मैं माजरत ख्वाह हूँ लेकिन मैं ऐसे मौज़ूआत पर मवाद फराहम नहीं कर सकता जो किसी भी ग्रोह, फर्द या अकीदे के खिलाफ नफरत या तनाज़े को हवा दे सकती है। मेरा मकसद हमेशा मुस्बत, तमीरी और बाहमी एहतराम पर मुबनी गुफ्तगू को फ़रोग देना है। बिल्कुल ऐसे। ये माइक्रोसॉफ्ट ने, लेकिन यहाँ कादियानियों, लेकिन यहाँ मैं अगर लिखूंगा ना सुन्नियों, तो सर जी पूरा मवाद फराम कर दिया जाएगा। हाँ ऐसे ही, ऐसे ऐसे ऐसे। या मैं इधर लिखूंगा वहाबी हूँ या मैं लिखूंगा शी हूँ, पूरी जो है ना मवाद फराम कर दिया जाएगा। लेकिन जब मैं ये गुस्ताखों का लिखता हूँ ना, कादियानियों की गुस्ताखी इन उर्दू, तो फिर सादी ये आ जाता है। हाँ 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 हाँ। बात करने का या कॉल पे आने का मकसद ये है कि सर देखें इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल जो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनीज हैं किस तरह इनको ये मामला प्रोवाइड कर रही हैं और अपने हाथ में रखा हुआ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा शान, जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 दिन 7 दिन हो गए हैं आपको हमारी बराड़ के ऊपर आते, कोई इल्म हासिल हो रहा है आपको? जी सर, जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मफादा भी हो रहा है। होता है ना, किसी हकीम के पास जाएं तो जरूरी नहीं है उस हकीम के पास जाते रहें, उसकी जो दवाई होती है ना उसका असर हो ना, तो फिर ही ये जो आप सीख रहे हैं ना, ये अब एक फर्ज सा हो गया आपके ऊपर कि ये चीजें आगे पहुंचानी आगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह ताला। अभी तो प्रोडक्ट भी ये आप लोगों की अब ड्यूटी हो गई है कि इल्म तो मिल गया, अब इसको आगे उंडेलना, जहां बैठे बात करनी है, अब चुप नहीं रहना। अब कादियानियत का लोग, अब देखिए अभी आए थे ना एक, वो कह रहे मुझे कादियानियत का नहीं पता। बड़ी दुनिया कादियानियत को, उनको पता ही कौन है कादियानियत है क्या, वो बताना है, आप लोगों ने बताना है। ये मिर्जा जूनियर जेलमी के चुंगल के अंदर जो कौम फंसी है, वजह उसकी मरकजी ये थी, लोगों को कादियानियत का पता ही नहीं था कि कादियानी अकायद और नजरियात के हैं। तो वो जब नहीं पता था तो वो इसके चुंगल पे हम फंस गए, क्योंकि अकीदा वो ही था, मिर्जे कादियानी का अकीदा था जो मिर्जा जूनियर जेलमी बयान कर रहा था। अब हमारे जैसे स्कॉलर पहचान गए कि यार ये तो सारा पहले हमने मिर्जे कादियानी की किताबों में पढ़ा हुआ है, ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से ये देखें 1974 की असम्बली के अंदर उनको नॉन मुस्लिम अकलियत डिक्लेयर किया गया और कहा गया कि तुम्हारा तो इस्लाम से कोई तल्लुक वास्ते नहीं है। तो ये अब हमारी कौम ने ये असम्बली की कार्रवाई पढ़ी ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि कादियानियों के साथ डिस्कस क्या हुई थी, कादियानी अकीदा क्या है, नजरिया क्या है, कादियानियों के साथ हमारा रोला क्या है, पता ही नहीं था। तो ये कौम ने ये वाली चीज, तस्वीर का असल रुख देखे बगैर ही मिर्जा जूनियर जेलमी की जब बात सुनी ना, तो उसके हाथ के ऊपर ही मान ले है। अब इनको पता ही नहीं चला कि डायरेक्ट मिर्जा कादियानी, डायरेक्ट मिर्जा जूनियर जेलमी उनके अकायद को खराब कर रहा था, इनडायरेक्ट कादियानी थे। तो मेरे भाई शान और जितने, मैं ये पैगाम सबके लिए है, सबके लिए, सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं। ये जो कुछ आप हमसे सीखते हैं या आगे कौम को बताइए, ये आपका फरीजा है मियाँ। कौम की तालीम और तरबियत कीजिए। इनको नहीं पता, वल्ला नहीं पता इनको कि कादियानी असल में मसला क्या है।
अब यहां पे दो रोले दो। एक रोला तो मैंने आपको बता दिया है, अभी बताया है कि कौम को कादियानी अकीदा नहीं पता था, तो वो मिर्जा जूनियर के चुंगल में फंस गए। दूसरा रोला यहां पर यह है कि जो अकीदा खत्म नबूवत के महाज के ऊपर काम कर रहे हैं, जो मुबल्लिगीन, वो मिर्जा जूनियर को नहीं सुनते थे और उनको नहीं पता कि मिर्जा जूनियर के क्या क्या कायद, वो उनको पता ही कौन है मिर्जा जूनियर ने क्या क्या कहा हुआ है। अब एक बहुत बड़ा खला आ गया, ऐसे खला आ गया। जो मुबल्लिगीन खत्म नबूवत हैं वो राजी नहीं करते मिर्जा जूनियर जेलमी का। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने सुना ही नहीं था इसको, इसके कायदो नजरियात का नहीं पता था। अगर यही तबका सुन लेता मिर्जा जूनियर जेलमी को और उसके अकायद और नजरियात को, उसकी तकरीरों को, उन्होंने ऐसे पकड़ना था, ऐसे। यार ये सारी बातें तो मिर्जा कादियानी ने की हुई हैं। अब ये खला है बीच में, दरमियान में ना ऐसे का खला है, तो समझ आइए। शान भाई ठीक हो गया? नीचे कॉलर काफी आ गई। बहुत साहब बिल्कुल ठीक हो गया इंशाल्लाह ताला। मैं नीचे ही हूं, आप दूसरे कॉलर को मौका दें। बहुत शुक्रिया सर। रब रख रब रख। हबीब साहब अगले कॉलर। जी मलक अबान साहब। जी मलक अबान साहब तशरीफ लाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मुफ्ती साहब? जी शुक्र है। एक तो मैं आपको जो है वो सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि कल दिन को आपके लाइव सुन रहा था, तो आपने फरमाया था कि इंजीनियर पे जो है ना वो 295 सीज, या तो ये अच्छा मलक भाई एक खबर ब्रेक कर रहा हूँ, जरा तवज्जो करिएगा। ये देखिए जी, रबुआ टाइम्स ने ये खबर नशर कर दी है। ये वही रबुआ टाइम्स है कि जिससे कि टक्कर के ऊपर आजज ने भी फिर चैनल बनाया था, खत्म नबूवत टाइम्स। ये है वो रबुआ टाइम्स चैनल। ये खबर नशर कर रहा है जनाब, जेहलम मरूफ इस्लामी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक बार फिर गिरफ्तार, अकेडमी सील। रबुआ टाइम्स कादियानियों का रबुआ टाइम्स चीखे मारनी शुरू हो गए हैं और चीखो पुकार शुरू हो गई है, चीखो पुकार शुरू हो गई है कादियानियों की, मुल्हिदीन की, एचईएस डैरियों की चीखा निकलनियां शुरू हो गई भाई। हाँ जी मलक भाई करिए बात। तो आपने फरमाया था या तो इसको असाइलम के लिए जो है ना ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसको तहफ़्फ़ुज़ दें और बाहर भेजें ताकि ये जाके असाइलम अप्लाई करे। और दूसरा आपने फरमाया था कि अब इसको फंसाएंगे, ये इन्होंने इसको अंदर लिए बुलाया है और अब उसके बाद इसके ऊपर ये केस वगैरह डालेंगे। तो जब रात को मैंने पोस्ट पढ़ी कि इसके ऊपर केस वगैरह डाल दिए गए हैं, तो फिर जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही जी जी। सिग्नल तो मेरे जहन में वो आपकी दो मेरे जहन में आपकी वो दो बातें थी। तो मलक साहब आपका ना नेट ठीक नहीं है, अब नेट ठीक करके दोबारा तशरीफ ले आए। जी बाद में हाजिर हूँ। ठीक, नीचे ना कॉलर काफी हैं। जी ठीक है, जज़ाक। बहुत शुक्रिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जट साहब आए हैं जी कोई? जी जट साहब तशरीफ लाए। जी जट साहब। जी जट साहब। हाँ ठीक है, आगे भाई आगे बढ़े, अगले कॉलर को बुलाए। कौन है? आ जाए भाई, कौन आई है? चौधरी जी चौधरी साहब। जी चौधरी साहब। जी चौधरी साहब। जी बोले चौधरी साहब। नहीं रहता, सिर्फ एक बारी क्या करो, तुसी तो दो बारी पूछ लिया, तीन बारी बदल लिया, क्या सी एक बारी पूछना है बस।
जी भाईजान, कौन तशरीफ लाए? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा मुफ्ती साहब, एक मसला पूछना था आपसे। जी मेरा ना एक दोस्त है, वो समझ लें कि एक लड़की से बात करता था, जैसे इंटरेक्शन हो जाता है, सोशल मीडिया है, उनको काफ़ी अरसा हो गया बात करते करते, बात चलो शादी तक आ पहुंची। तो उसको पता चलता है कि वो लड़की जो है वो मिर्ज़ई है, कादियानी है। अच्छा, तो वो चाहता है कि यार मेरी शादी हो जाए, लेकिन लड़की भी कहती है कि मेरी भी हो जाए, लेकिन वो गढ़ वाला ताल्लुक है, वो आ जा नहीं सकते, वो लड़का जो है वो सुन्नी है। तो वो लड़के ने उसको बोला है कि तुम अगर भाग जाती हो मेरे साथ तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लड़की भी इस बात पे एग्री है कि मैं भी मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ। तो ये ठीक है आपकी नज़र में? हाँ, क्या कहेंगे आप इस बारे में? असल च मैं कोई शरी मसले नहीं जे दसदा, ते मेरी ते बस मिर्जा कादियानी ते मिर्जा जूनियर जेलमी दे तारुफ दे विच या उन्हां दे अकायद और नजरियात दसन दे विच बराड़ हुंदी है, ते फिकी मसाइल असी नहीं दसदे। ते बकाया जिहड़ी है गल्लां उंज भी वैसे ऑनलाइन आके नहीं पुछी दियां हुंदियां। ते हाँ नहीं, वो मैं इस वास्ते पूछा है कि वो मेरा दोस्त है ही, वो तो कोई हिम्मत नहीं थी हो रही। मैं कहा मुश्किल नहीं है, मैं पूछ रहा ना, वैसे कोई गल नहीं। गल है वे कि जुल्म ते ज्यादती दी इस्लाम इजाजत नहीं दिंदा। गल ध्यान च रखियो, चाहे कुछ भी है, काफर दी कुड़ी है, औरतां दे बड़े हकूक ने, चाहे वो कोई भी है, ठीक है, चाहे वो कादियानी दी लड़की हो क्यों नहीं, वो किसी दी वही बेटी है, ठीक है। गल एक गलत है, जी गलती है वो फिर गलती रहनी है, वो किसी तरीके सही नहीं हो सकती। ठीक हो गया, लीगल तरीके नाल जो करना है वो करो, जो है वे जिदी इजाजत दोनों कानून भी जिदी इजाजत दवे ते इस्लाम भी जिदी इजाजत दवे, वो काम करो। एक तीसरा रास्ता इख्तियार ना करो। ठीक हो गया, बस ये हुई मैं मुख्तसर ये हुई दस सकन। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैं यही पूछना था। ठीक हो। अच्छा भाईजान, बराड़ थल्ले आ गई है, डबल टैप करो और बराड़ शेयर करो, मेहरबानी फरमाओ, जल्दी करो जरा। यार बराड़ ना ही शेयर हो रही है ते ना ही डबल टैप हो रही है। मुंडियो की करो, खिंचो यार जरा थोड़ा जा, मशीना भी ला दियो, मशीना भी ला दियो, ला दियो मशीना, चुक दियो बराड़ नो। आ चल भाई, फिजान भट्ट है, फिजान भट्ट। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। उनका उस्ताद जी, वो खबर तो माशाल्लाह आपने वो कर दी हुई है ब्रेक के, मिर्जा इंजीनियर जो है गिरफ्तार हो गया है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जिन एजेंसीज ने इसे खड़ा किया है, जो इसकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं, वो कहाँ किस हद तक जो है इस मसले को आगे जाने देंगे, जो इसके ऊपर एक दफा नहीं ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਕਾਬ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਿੱਲ ਵੀ ਲਾ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਬਸ ਗੇਮ ਓਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਮੁਲਹਿਦੀਨ कादियानी बड़ा पिटदे ने पे, अज बड़ा पिटदे ने पे, ओए होए अली। ये जो उस्ताद जी भी नीचे आया था ना, ये मिर्जा इंजीनियर का सहाबी है जो भी नीचे आके कमेंट कर रहा था ये वाले। और करन दियो उन्होंने, थले बह के रोन पिटन दियो। हबीब साहब अब कालर नु चुको भाई, कालर चुको, कालर चुको भाई, कालर कोई आ जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरा सलाम तमाम मुसलमानों के लिए है। कादियानियाँ, गोबर छैयाँ और मेरे से छोटे बड़े तलानत बेशुमार तेज़ रफ्तार। उस्ताद मोहतरम, मेरा एक सवाल है। जी, सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैंने आज के दिन दीन को मुकम्मल कर दिया। दूसरी बात यह है कि पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी व कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, नबूवत का दरवाज़ा बंद है। दीन मुकम्मल हो गया,
नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। इसके बाद कादियानी ये कहें कि मिर्ज़ा साहब जो है ना वो ज़िली हैं, बुरूज़ी हैं, मिर्ज़ा साहब ये हैं, मिर्ज़ा साहब वो हैं। जब दीन मुकम्मल हो गया उसके बाद किसी नबी की ज़रूरत तो नहीं है ना, क्योंकि दीन तो पहले ही मुकम्मल हो चुका है। इससे पहले अगर मिर्ज़े कादियानी के मानने वाले ख़ातमुन नबिय्यीन का मायनी वो लेते हैं अफजल, तो ये अफजल मायनी ख़ातम का जो मायनी इन्होंने किया अफजल, इससे पहले ये क्यों नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? अगर अफजल है, ये तो सवाल कादियानियों से करना चाहिए जी यही सवाल है ना, मैं यही सवाल था कि अगर ख़ातम का मायनी अफजल है तो ये लफ्ज़ पहले अफजल के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? खातम का अंबिया माना ये करते हैं मोहर, जी अफसल पता नहीं वो भी करते ही होंगे, लेकिन मोहर यानी ये मोहर हजूर अलैहिस्सलाम ने पकड़ी हुई है और वो मोहरें लगा लगा के आगे मजीद नबी बना रहे हैं। और यही वो बात है, मिर्ज़ा जूनियर जेलमी ने इसके बारे में कहा था कि कादियानियों ने जो तर्जुमा कुरान किया वो ठीक की है, मोहर का तर्जुमा, जबकि मुसलमान मौलवियों ने तर्जुमा इसका गलत किया हुआ है। ये थी असल में वो मरकजी बात जो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी ने की थी। ये मैं वीडियो तलाश कर लूं तो मैं आपको जी जरूर वीडियो नाल लाजमी चलाओ ताकि लोगों को पता चले कि मिर्ज़ा इंजीनियर बरखाने वाली बस की करिए उन्होंने उत्थे अंदर क्यों होया, की वजह है कादियानियत कादियानियत अल्लाहकार सी ना, कादियानियत अल्लाहकार। अच्छा जी जरूर चलाओ जनाब। खातम दा तर्जुमा जरा मैनूं लभ लैण दिओ। आप सब कोई और सवाल है तो दस दिओ। अच्छा हाफिज अफनान जी जी यार एक आईडी तू नहीं मैनूं बना के दित्ती सी टिकटॉक दी यार? जी जी वो उनकी जीमेल पई हुई है मेरे को। अच्छा गल है वे के काफी आईडियां मैनूं बना के दित्तियां और नाम नहीं मैं मुंडियां दे लेंदा ते ਉਹ ਆਈਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਈਡੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਵਰਡ ਵੇ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਆਈਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਈਡੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ हल है वैसे मुफ्ती साहब जीमेल चेंज कर दो। मैंने तो आपको उस वक्त भी कहा था कि आप जीमेल ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਐਬ ਮਨਸ਼ਾ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜ਼ੈਨ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹੈ ਅਫਨਾਨ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਆਈਡੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਟੋਟਲ ਆਈਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਆਈਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। मेरे वाली आईडी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੌਗਇਨ ਹੈ ਵੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੌਗਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਮੇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੀਮੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਡ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਗਇਨ ਹੋਵਾਂ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀਮੇਲ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਡ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੀਮੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖਾਤਮ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ? ਹਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕੋ ਜ਼ਰਾ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚਲਾਓ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਾਂ ਗੱਲ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ भैया आ गया। यानी कुरान पढ़ रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे से ना पढ़ें।
ਕਿਹੜੀ इस्लाम की खिदमत है? कुरान का तर्जुमा अगर कोई गलत करता है, वैसे तो मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता हूं, कुरान के तर्जुमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता। ये कहेंगे कि कुरान तर्जुमे से ही पढ़ना छोड़ दें, कि बड़ा रोंद मार दो यार, पेट से आप आके बैठ गए हो, ये आपकी बेसिक नीड है कुरान तर्जुमे। ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤਰਜਮਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਜਦ ऐसे पढ़ना, तो ये 2 नंबरी छोड़ दें। और फिर मैंने देखें बारहा ये बात की है, आप उनसे भी जाके कुरान का तर्जुमा करवाएं ना, अगर उनको उर्दू या इंग्लिश आती हो वो वही तर्जुमा करेंगे जो ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ। ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। कुरान की अरबी लिंग्विस्टिक का बनता है। तर्जुमे में कौन कैसे बदल सकता है, मुझे बताएं। तो ये किस तरह कह सकते हैं आप कि तर्जुमे बदल गए? ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਜੋ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਜਮੇ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾ ਠੀਕ। 8 ट्रांसलेशंस ऑफ कुरान और उलमा का धोखा, ये बेसिकली रंग में भांग डाल रहे हैं। ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़े, और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो तर्जुमा कौन सा तर्जुमा बदला हुआ? इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जुमे में फर्क डाल दिया। और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जुमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ। माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जुमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया। माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जुमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत। सुन लिया भाई अफनान, ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਖਾਤਮ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਟਾਊਟ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਲਾ ਖਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। उस्ताद मोहतरम, अगर कादियानिया ने तर्जमा ठीक किया हुआ है, कादियानियत आई आज तो 1.5 साल है पुरानी है ना, जबकि दीन इस्लाम 1400 साल पुराना है। इनका मतलब है 1300 साल पहले जरा तर्जमा सी वो गलत सी। तौबा सुभान अल्लाह माज़ल्लाह। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੇਖੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜਜ਼ ਦੀ ਮੁਫੱਸਲ ਕਿਤਾਬ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ, ਮੁਫੱਸਲ ਕਿਤਾਬ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੁਗਾਤ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। और अगर मुख्तसर पढ़ना चाहते हो तो हजे हुन छोटा जिहा रसाला है अकीदा खत्म नबूवत और कादियानियत, और दूसरा रसाला भी छप गया है, अज रात नूं बिल्टी हो जाएगी इंशाल्लाह, ते कल तक पहुंच जाएगा। ते रिसाले भी आ रहे ने, ते इनू मंगवाओ भाई अपने अपने इलाकियां दे विच। अफनान, तेरा इलाका केड़ा भाई? मेरा इलाका शरकपुर शरीफ, जिला शेखुपुरा। कम अज कम मंगवाओ यार, कोई 100 200 400 500 1000 मंगवाओ। उस्ताद मोहतरम, मैं इंशाल्लाह 5 तरीक ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਣਾ ਵਾ, ਤੇ इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ, ਕੀਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ, ਕੀਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਮਝਾਓ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਜ ਡਾਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਵੇਖੋ 15-16 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। जी अफसर, कोई और सवाल है ਤੁਹਾਡਾ? जी मेरा यही सवाल थी, मैं कर चुके हैं। चलो नीचे आ जाओ, वो काफी नीचे कॉलर ज्यादा है। ਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ?
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕੀਦਾ ਕੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਵੋ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉਲਮਾ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਆਲਿਮ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਤਿੰਨ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਸਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ 30 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜਨਗੇ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪੜਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਹਕੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਵੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੈਫੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ। ਤੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਹੀ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਚਲੋ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਕੋਈ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਆਸੂ ਵੱਲ ਇਕਾਬ। ਐਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਰੱਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੁन्नी ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਜਲਾਲੀ, ਅਤਾਰੀ, ਸੈਫੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਸਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਕੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸੁन्नी, ਬੜਾ ਇਲਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਜ਼ਲੇ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤਮਾਮ ਅਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਸਕੈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ, ਵਿੰਦੇ ਪੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਦੇ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਸਕੈਨ ਹੀ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਸਫੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ 300 ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ 61 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 171 ਤਕਰੀਬਨ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ 110 ਸਕੈਨ ਲਾਏ ਜੇ ਮੈਂ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ 110 ਸਕੈਨ ਲੱਗੇ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਚ ਗਲਬਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਹਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਰਾ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੰਭਾਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਐਂਡ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਹਬੀਬ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਕਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਪਾਓ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਾਲ ਪਾਣੀ ਆਪ ਕਾਲ ਪਾ ਲਓ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੋਂ। ਗਾਲੀ ਕੱਢੋਗੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਹਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਾਏ ਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਆਈ, ਉਹ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅਕਦਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਨਬੀ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਸਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਰਹਾ ਮਰਤਬਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਬਕਵਾਸੀਆਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਜੀ ਵਾਲੇकुम ਸਲਾਮ। अच्छा कलर चुको जी, नवा कलर। ਅਬੇ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਕਾਲ ਪਾਣੀ ਜੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਸਾ। जी गुजराती भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब की हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक दा जनाब, फरमाओ। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है कि जिस तरह कि हबीब भाई ने भी किया कि हर बंदा भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखता है, हर बंदे क्योंकि हर बंदा जो कन्ना च गराइयां तो नहीं पाता ना, हर बंदा इस टाइम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है, तो लाइक हर बंदा इस चीज़ को जानता है कि उन्हें गुस्ताखी की है या उन्हें अज तो पहले भी गल्लां शल्लां कीतियां ने, तो इदारियां हून ही क्यों जड़ा वे वो इस चीज़ के उत्ते आया वे कि हून चुकना चाहिए, उन्होंने पहले क्यों नहीं चुकिया है? अच्छा गुजराती भाई गल है वे ते अदारियां दा काम है ना, ते साडे मुतलका ते सवाल नहीं। नहीं, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ भी तो चुकनी चाहिए है ना। देखो वैसे अगर कादियानी गुस्ताही करते हैं या कोई और बंदा गुस्ताही करता है तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਨਾ ਵਾ, ਕਤਰ ਹੁੰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੀਡੀਓ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਅੱਛਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਰਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਤ, ਟੋਟਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਵੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ। ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਾਵਰੇਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿਕੀਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ मोहतरम ने, तो मैं उन्होंने को पूछ लेना वा, ठीक है। तो ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤੀ ਮਨੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮੇ ਬੁਖਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ टाइटल वगैरह तो स्लोगन वगैरह सोशल मीडिया पर अपलोड होए सन कि मुनाजरा होएगा, ये होएगा, वो होएगा, ठीक है। उस तो पहले भी एक दो बारी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के नाल गल वगैरह की गई है, तो उन्होंने यही कहा सी कि असी अपने मतलब मसलक दा या अपने मजहब का जो भी मामलात ने असी अपने प्लेटफार्म तो बयान करने आ। मिर्जा जेलमी जड़ा वे अपने प्लेटफार्म तो करता रहे, ठीक है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ मतलब मुफ्ती आजम पाकिस्तान ने वो, ठीक है, कि हर मसलक के बारे च हर मजहब के बारे च वो नॉलेज रखते हैं, क्योंकि हर बंदे ने अपनी दस्तार उन्होंने सिर ते रख के उन्होंने मुफ्ती आजम पाकिस्तान बनाया तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਛੋਟੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਲਿਮ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। लेकिन मुफ्ती आजम पाकिस्तान ने भी इस मौजू के उत्ते अगर पहले गल की होंगी तो शायद अज हालात ना होंगे। जी बिल्कुल। अच्छा गुजराती भाई होर कोई सवाल है जे ते ठीक, नहीं तो मैं फिर ना तुसीं थल्ले पै जाओ, होर कलर असल च आए ने, मैं जवाब देना है तुहाडे इस चीज़ का, थल्ले बह के ना जवाब सुनिया जी। ओके 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 जी गुजराती बिल्कुल। देखो जी हक चीज़ है हक ही है, हक तो बयान करांगे ना असी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम लालिया मेरे उस्तादे ग्रामी ने, मैं फिजिकली उन्होंने को पढ़िया हूँ, ठीक है। बल्कि मैं ते 2 दौरे हदीस कीते ने, ते जेड़ा दूसरा दौरा हदीस कीता सी मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दे इदारे दे विचों ही कीता सी। उदों अल्लामा गुलाम रसूल सैदी रहमतुल्लाह अलैह हयात सन। अच्छा ते वाकई यह गल है वे कि भाई हुण भी उन्होंने कोई फतवा भी नहीं दिता, कोई फतवा भी नहीं आया, कोई गल नहीं, कोई एक्शन नहीं, ते यह जिहड़ी गल है वे है। हाँ जी अगले कॉलर नूं चुको जी। जी उस्मान भट्ट साहब जी उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा ऊंचा बोलिया जे। नहीं वे कप नहीं लाना। आवाज आ रही है मेरी? जी जी मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? जी शुक्र है जी। भट्ट भाई बताए। मुफ्ती साहब मेरा सवाल है, आपने यार ये कर लिया। मेरा सवाल है आपसे, आपने अगला कॉलर भाई अगे और कोई कॉलर नहीं है। अच्छा मुफ्ती ये हो रहे है। अच्छा भाई आ जाओ भाई, कॉलर कर लो कॉल भाई। कॉल करो, कॉल पाओ, उत्ते आओ, तशरीफ लियाओ। हाँ अच्छा ते हुण इन्नी बराड़ काफी नहीं, 1 घंटे दी हो गई है हबीब साहब। हजूर अली चलन दो थोड़ी देर और है।
और नहीं कोई स्टैमिना भी तो बरकरार रखीदा ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਏਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਬਸ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਸਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ 2-2 4-4 5-5 10-10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਲੰਬੀ ਟੋਰ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਵਾਂਗੇ ਲੰਬੇ ਬਵਾਂਗੇ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹਤਮੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਫਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕੀ ਖਿਆਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।